Good morning, students. Today's our motive is to create a full-fledged CRUD application or microservice CRUD application with the help of Visual Studio. So these links are there. Simply you can put on Google, like I have already. You can see on the screen in the first tab, at least title microservice example with Visual Studio. You will get these two. One site is C Sharp Corner and another site is codeproject.com. The same person has posted examples there. So in Visual Studio, if you want to create a uh, ASP.NET Core web application and CRUD application, so first you need to install. Listen, there are many steps that are not informed in this article. So whatever I am saying, you need to listen carefully, and then whenever that particular thing is there, that you need to, according to that, you need to create our application. The first thing is that you need a Docker. Already I have told you Docker installation. Everybody is aware about that. So Docker you require. Then you require SQL Server installation, and again you will require SQL Server Management Studio. Okay. So before I start particular thing, so I'll just show you SQL Server Management Studio. So I have installed SQL Server Management Studio 18 point something. That version is there. But it is already installed. Management Studio will so sometimes what happens, we install only SQL Server Management Studio. The main strange thing is that Visual Studio, when we install, few .NET SDK comes along with Microsoft Visual Studio. But SQL Server का different part है. If you install only Management Server, okay, Management Studio, so it doesn't comes with SQL Server. So you need to first download SQL Server, and then you have to install. Okay, download SQL Server, install it, and then you have to download Management Studio and install it. I can show you that particular thing. If I have put in particular folder, MSA, okay, so you will require some uh, code, sorry, files to install that particular thing. So I can see my downloads. May already I have installed that particular thing. You will get that one. Okay, this is SQL Server का setup. This is SQL Server का setup. The one is Management Studio का setup. Okay, so these are two things. I just cut them and I will paste them when the folder will I will make you available. So both the files are there. It downloads the product from the net, and so you can see here my Management Studio is open for you. Okay, hopefully on your server is installed. Okay, then I need to log in with SQL authentication. By default, you find Windows authentication, simply connect it and install it. But to run this particular application, you have to use some the local host machine का, not the whatever you are using, what we can say that name SQL Server Express or anything. This is the name of server in string laptop dash I2Q EMP MSS slash SQL Express. This is my SQL Server instance name. This I can use with IIS server for running. But if I want to run the same application with Docker, then I need to get the IP address of our machine. So whenever we are running it with localhost, that is 127.0.01, that is okay. But whenever you are connecting with some internet or some Wi-Fi connector or anything, so that particular IP address you require. I will tell you that one also. That is also help. So what first thing you need to use here, Windows authentication. This will require when the code will come again. I will do. So instead of Windows authentication, you have to select SQL Server authentication. In that, obviously, SA is your system admin account. Then you have to just check it whether you can log in with your system user account or not. Okay, and then in databases you have to check the thing. Okay, this is the database that we are going to create with our application. So right now to demonstrate you, I am just deleting that database. Okay, you can see here I have refreshed. There is one customer database.
that is for separate application that I will show you later on. And now you can see only one database is there, and we are going to create a product database with our application. So application is long, and we have to finish it within this particular lecture. So I will start with application. We need to open the ASP.NET Core web application, or sorry, core application in the Visual Studio. So you need to open the Visual Studio and add new project. So all the steps are given here. So I'm not going to repeat that one, but if you want, so still for your satisfaction purpose, I'll just open the things. Okay. So as per the step, I will just go through few steps. Open the Visual Studio and add new project. So file, new project, and here they are asking you about ASP.NET Core web application. Choose the application as ASP.NET Core web application and give some meaningful name. Any name you can give. But obviously, we are building one product related microservice, and that we are going to test. So we will prepare like this. We are going to give the name product microservice, and after that, this is the step, extra additional step that is there in previous version of Visual Studio 2019. In newer version, it is not there because directly we can create the ASP.NET web application with the API option. Okay, so that step is different. So that's why that I am going to show you. Okay, then after that you need to select whatever it is there. I will show you again how exactly latest version पे कैसे करना है. And then you have to check this particular enable Docker support operating system Linux, because Docker you know that operating system Linux पे रन होता है. जस्ट इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आपको पेज पे भी पूरा दिखे. ओके, कहाँ पे क्या क्लिक करना है, कहाँ पे, एंड देन वंस इट इज डन, इस तरीके से वो दिखना चाहिए. ओके, प्रोडक्ट माइक्रो सर्विस कनेक्टेड डिपेंडेंसीज, ये पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर वर्जन में www रूट दिखा है और कंट्रोलर भी दिखा है, लेकिन अभी नए .NET वर्जन में ये www रूट आता नहीं, बिकॉज ये हम लोग यूज नहीं कर रहे. वी आर गोइंग टू क्रिएट अ माइक्रो सर्विस, एंड माइक्रो सर्विस कभी भी विजुअलाइजेशन के बेसिस पे नहीं चलता है, मैसेज एक्सचेंजिंग और मैसेज क्यूइंग के बेसिस पे चलता है. ओके, so till this step I am going to show you. So I have launched the Visual Studio. I need to create new project. Okay, यहाँ पे राइट हैंड साइड में लास्ट ऑप्शन है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट. ओके, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, एंड देन हियर इन द सर्च बॉक्स, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे. ओके, मल्टीपल ऑप्शन है इन द सर्च बॉक्स. अगर आप लोग यहाँ पे ऑल करोगे ना, तो इतने ज्यादा ऑप्शन है कि बहुत ज्यादा ऑप्शन ऑल करोगे तो. ओके, सो यू कैन सर्च दैट वन. और यहाँ पे फिर हम लोगों को C# में करना है, तो ऑल लैंग्वेजेस की जगह पे हम लोग सिर्फ C# करेंगे. नेक्स्ट ऑप्शन विंडोज पे एप्लीकेशन बनाने का करंटली, और हमारा वेब एप्लीकेशन. अगर सब में ऑल करोगे तो ऑलमोस्ट 30-40 ऑप्शन वहाँ पे आ जाएंगे, उतना सर्च करना मुश्किल हो जाएगा. तो सर्च बॉक्स में ये नए वर्जन में ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन वहाँ पे बोला है, बट यहाँ पे आइदर ASP.NET Core Web API ऑप्शन आता है या फिर ASP.NET Core Web App. तो वेब ऐप में आपका वेब एप्लीकेशन बनाएगा, बट हम लोगों को वेब एप्लीकेशन API के साथ बनाना है, दोनों .NET Core में. ओके, बोथ आर along with .NET Core because लिखा है ASP.NET Core. तो फर्स्ट ऑप्शन वी हैव टू सिलेक्ट, जिसमें ये पर्टिकुलर सिंबल दिखाया है कि जैसा ASP.NET Core Web API. यू कैन सी हियर, हम लोग वापस ब्राउजर पे आए हैं. पिछले पिछले .NET वर्जन में ये ऑप्शन नहीं था, तो वी हैव टू एडिशनली वन स्टेप अलग करके API सिलेक्ट करना था. मतलब पहले वेब एप्लीकेशन बनाओ, फिर उसमें नेक्स्ट स्टेप में उसमें API ऐड करो. बट राइट नाउ न्यूअर वर्जन डायरेक्टली गिव्स यू वेब एप्लीकेशन विथ API. So select this. Okay, what is that? ASP.NET Core Web API, then C#, then next. नेक्स्ट विंडो में आप लोगों के यहाँ पे जैसे आप लोग नाम दे सकते हो, तो यहाँ पे मैं एक टेम्पररी नेम देता हूँ प्रोडक्ट. कहाँ पे स्टोर करना है,
दैट यू कैन चेंज। आप लोगों का सी ड्राइव, डी ड्राइव, जहाँ पे भी आप लोगों को स्टोर करना है, जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट रहेंगे डॉट नेट के, वहाँ पे रखिए। ओके, प्लेस द सोल्यूशन एंड प्रोजेक्ट, ये चेक किया, टिक किया, नहीं तो भी डॉट नेट एनवायरमेंट टेक केयर कर लेता है। एंड देन जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट क्लिक करते हो तो नेक्स्ट विंडो में टारगेट फ्रेमवर्क आपको पूछता है। So best is that whatever Visual Studio by default tells you, select that one and go along with that. Okay. यहाँ पे टारगेट फ्रेमवर्क आप लोगों को क्या रखना है, डॉटनेट फ्रेमवर्क जो आपका विजुअल स्टूडियो सपोर्ट करता है वही लॉन्ग टर्म सपोर्ट। आई विल सजेस्ट गो बाय 3.1। ऑथेंटिकेशन टाइप आप लोगों को कुछ रखना नहीं है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फॉर एचटीटीपीएस लिखा है, इट्स ओके, रहने दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देन दिस वन यू हैव टू सिलेक्ट अनेबल डॉकर। ओके, अनेबल डॉकर एंड डॉकर ओएस कौन सा रहेगा, लिनक्स। तो होपफुली सब लोगों को यहाँ तक समझ में आया है। देन क्रिएट, जैसे इट इज टेकिंग सम टाइम टू क्रिएट द प्रोजेक्ट, and once it is created the project, I'll show you what is exactly this. So please look at your screen का right hand side, project is built। right hand side इसलिए कि particular folder structure किस तरीके से बना है। okay? यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट आप लोगों का माइक्रो सर्विस बना है, कनेक्टेड सर्विसेज है, इसमें डिपेंडेंसीज हैं। ये डॉकर स्टार्ट हो गया बिकॉज हम लोगों ने डॉकर वहाँ पे अनेबल किया था। तो ऑटोमेटिकली जब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा और आप डॉकर सपोर्ट अनेबल्ड करोगे तो डॉकर शुरू हो जाएगा। लेट इट बी डॉकर रन इन द बैकग्राउंड, बिकॉज हम लोगों को वैसे भी ये प्रोजेक्ट रन करने के लिए एसक्यूएल सर्वर विथ मैनेजमेंट स्टूडियो रन करना है, विजुअल स्टूडियो रन करना है एंड डॉकर रन करना है। यू कैन सी डॉकर इज रनिंग नाउ। I'll just cross verify whether it is running at proper operating system or not. Okay. Yes, it is running on proper. So Docker छोड़ देते हैं, यहाँ पे आते हैं डिपेंडेंसीज में। यहाँ पे पैकेजेस दिखा है, पैकेजेस में हम लोगों को डिफॉल्ट पैकेज आया है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो अज्यूर कंटेनर टूल्स डॉट टारगेट, पर हम लोगों को यहाँ पे कुछ पैकेजेस ऐड करने हैं। तो वो पार्ट मैं आपको विजुअल स्टूडियो में दिखाऊंगा। देन कंट्रोलर का फोल्डर ऑलरेडी बन चुका है, उसमें वेदर फोरकास्ट वाला डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो आता है वो एक फाइल है वहाँ पे। so that we have to delete, okay, and in that we have to create a new one। okay, so let us go step by step here। okay, so प्रोजेक्ट क्रिएट किया, अनेबल डॉकर सब कुछ किया, एपीआई वाला किया। यू कैन सी सिर्फ ये डब्ल्यू रूट वाला नहीं, क्योंकि वेब एप्लीकेशन बना के फिर उसने एपीआई ऐड करने की बजाय हम लोगों ने डायरेक्टली एपीआई वाला प्रोडक्ट माइक्रो सर्विस यहाँ पे देख लिया, डिपेंडेंसी भी देख ली है, कंट्रोलर वाला फोल्डर भी देखा है। ओके, and other thing you can see either weather forecast or other कुछ नहीं। so then what you have to do, we are going to create a new folder named called as model। okay, कहाँ पे फोल्डर क्रिएट करेंगे, हमारा जो वेब सर्विस का सॉरी प्रोजेक्ट का जो नाम है इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ऐड, जैसे यहाँ पे हाईलाइट किया है, और ऐड नेम के बाद ऐड के बाद न्यू फोल्डर। जैसे हम लोग न्यू फोल्डर ऐड करेंगे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम रहेगा मॉडल। ओके, और फिर उसी फोल्डर को जो मॉडल्स नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ है उसी को राइट क्लिक करके ऐड करके हमको उसमें एक सी शार्प क्लास ऐड करना है। ओके, उसमें क्लास ऐड करना है, उस क्लास का नाम रहेगा उस क्लास का नाम रहेगा प्रोडक्ट। ओके, मॉडल्स के अंदर आई जस्ट रिपीट द थिंग्स सो दैट इट विल गो फास्टर। न्यू फोल्डर, राइट क्लिक करो, ऐड न्यू फोल्डर। ऐड न्यू फोल्डर करने के बाद फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, ऐड करना है, सी शार्प क्लास करना है। और सी शार्प क्लास में हम लोगों को प्रोडक्ट नाम का जो क्लास रहेगा उसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज ऐड करना है। कौन सी प्रॉपर्टीज, आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, प्रोडक्ट। ओके, हियर यू कैन सी आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, प्रोडक्ट। तो एंड उसका कैटेगरी आईडी एक लिख देंगे ताकि हम लोगों को दो टेबल पे बनाने का है, वो सारी चीज यहाँ पे आपको पता चले। ओके, यू कैन सी हियर पहला क्लास हमने बनाया आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्लास। ओके, एंड देन देयर इज अनदर क्लास कॉल्ड एज कैटेगरी क्लास। उसमें सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आईडी की जगह पे क्या रहेगा, कैटेगरी आईडी रहेगा। यू कैन सी फर्स्ट क्लास हियर प्रोडक्ट जैसा, प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया है, आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी आईडी। ओके,
एंड देन सेकंड क्लास उसी फोल्डर में बनाया है कैटेगरी नाम का, जिसमें आईडी, नेम और डिस्क्रिप्शन लिखा है। ओके, जिसमें एक एक्स्ट्रा है कैटेगरी आईडी। दिस कोड इज अवेलेबल एनीवेयर। नाउ वी नीड टू अनेबल EF4. So through .NET API, project has inbuilt support for EF4 and all related dependencies are downloaded at the time of project creation and compilation that could be found under SDK project as shown below. But still, अगर आप लोगों को वहाँ पे कुछ EF4 का पर्टिकुलर डिपेंडेंसीज ऐड करना है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं that I will show you whether it is given or not. Okay? यहाँ पे भी दिया है, so there is no issue as such. ठीक है, तो फिर भी अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज ऐड करना है ऑनलाइन, तो ये विजुअल स्टूडियो मैंने अभी ओपन किया है। टूल्स में जाना है। ओके, टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे नगेट पैकेज मैनेजर रहता है। नगेट पैकेज मैनेजर में आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, मैनेज नगेट पैकेज फॉर सोल्यूशन। फिर से बोल रहा हूँ, टूल्स में जाकर नगेट पैकेज मैनेजर एंड मैनेज पैकेज सोल्यूशन। यहाँ पे इंस्टॉल्ड आता है बाय डिफॉल्ट कौन सा है, तो इंस्टॉल्ड की जगह पे आप लोगों को क्या करना है, ब्राउज पे करना है। ब्राउज पे क्लिक करना है एंड देन सर्च माइक्रोसॉफ्ट डॉट डॉट एसपी डॉट नेट और ओके। तो यू कैन सी हियर, जो भी आप लोगों को वहाँ पे एरर या कुछ मिसिंग आता है, उस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी का नेम कॉपी करना है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे देखो कौन सा डिपेंडेंसीज बताया, यहाँ पे देखो तो ऑथेंटिकेशन कोर, ASP डॉट नेट कोर। तो ये अगर लिखा है तो हम लोग लेंगे, और प्लस हम लोगों को लगेगा माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क फॉर SQL सर्वर। ठीक है, तो जस्ट आई विल ट्राई टू कॉपी दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग और इसको वहां पे कैसे सर्च करना है और इंस्टॉल करना है एक दिखा देता हूँ, बाकी का आप लोगों को एप्लीकेशन में से देखना है बिकॉज ऑफ टाइम रिस्ट्रिक्शन। यू कैन सी एंटिटी फ्रेमवर्क का एक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, यहाँ पे मैंने डाल दिया है। यू कैन सी हियर माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर SQL सर्वर, इसको सिलेक्ट करो। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि क्या करना है, तो इसको हमारे प्रोजेक्ट में ऐड करना है। इसको राइट की यहाँ पे चेकबॉक्स चेक करो, सेंटर में देखो, वहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी चेकबॉक्स चेक करो। यहाँ पे स्टेटस बता देता है नॉट इंस्टॉल, तो व्हाट यू हैव टू डू इज इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद जब वो पर्टिकुलर डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो जाएगी, एक्सेप्ट करो जो भी आप लोगों को ऑप्शन आता है सो दैट फर्दर यू कैन गो। जब वो पर्टिकुलर नगेट पैकेज डाउनलोड करके इंस्टॉल हो जाएगा, तो यू कैन सी हियर इंस्टॉलेशन फिनिश्ड, और यहाँ पे भी स्टेटस चेंज हो गया। यहाँ पे अनइंस्टॉल है, अनइंस्टॉल आया मतलब इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे ग्रीन सिंबल आ जाए। ओके, so this is the one thing that you have to do. Okay, now we will move ahead further in our application. तो हम लोग इस तरीके से जो भी नगेट पैकेज, अगर तुम आप लोगों का बिल्ड में कुछ एरर आया कि ये मिसिंग है, समथिंग मिसिंग है, डिपेंडेंसी मिसिंग है, तो दैट उस नेम को उस पर्टिकुलर इस तरीके से नेम आएगा एंटिटी फ्रेमवर्क समथिंग, वो वहाँ पे आ जाएगा। आई कैन शो यू, जब हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं, क्या आई क्लोज दिस वन, तो यहाँ पे वापस इधर चेक करो, ये यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ये वाला पैकेज यहाँ पे आ चुका है, SQL सर्वर वाला। इसको क्लिक करोगे तो यू कैन सी इसके साथ मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। जनरली .NET कंपाइलेशन के वक्त बिल्ड के साथ अगर नेट से आप कनेक्ट हो तो डाउनलोड कर लेता है, इंटरनेट से कनेक्ट हो तो आप लोग क्या वो ये सारी चीजें डाउनलोड कर लेता है। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से अगर ये डिपेंडेंसीज डाउनलोड नहीं हुई है, तो आप लोगों को डाउनलोड करना है। ओके, कमिंग बैक टू अवर, so this should be a package inside the downloaded SDK. If it is not present, it could explicitly add it to the project via Nugget package. यही बोला है कि अगर एरर आया, कुछ आया, तो आप लोग ये स्क्रीन पे देख सकते हो कौन से नाम के कौन से पैकेजेस हैं, उतने सारे आप लोग डाल सकते हो। बट इसमें कुछ अननेसेसरीली भी है, कुकीज फॉर फेसबुक गूगल जो नहीं चाहिए। ठीक है, so what are necessary, what are that I am going to show you. I will show you that three names that please you can take a screenshot
and just use that one. I will show you what kind of three dependencies you will require. तीन आप लोगों को कंपलसरी रखेगा, उसमें से एक मैंने एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड कर चुका है। उसके बाद में ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ये वाला आप लोगों को डाउनलोड करना है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। ओके, हाईलाइट किया है। देन सेकेंड आप लोगों को डाउनलोड करना है, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। ओके, सिमिलर तरीके से जैसे अभी मैंने आपको बताया। देन थर्ड है माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स। ये तीन तो भी मिनिमम चाहिए, अदरवाइज जनरली इंटेलिसेंस जो रहता है विजुअल स्टूडियो का वो अपने आप डाउनलोड करता है कंपाइलेशन या बिल्ड के टाइम पे या एग्जीक्यूशन के टाइम पे। पर अगर नहीं हुआ, किसी वजह से प्रोजेक्ट स्टक हो रहा है, तो प्लीज download this dependency explicitly as already said here. Okay, what I have done, okay, as already said here by the author. Okay, it could be explicitly downloaded and added to project via nugget package. कहाँ से जाना है, टूल में, nugget package manager में, ऑनलाइन वाला पार्ट। तो एडिंग EF4 डिपेंडेंसी DB कंटेक्स्ट, अभी हम लोगों को CRUD एप्लीकेशन बनाने का। तो ऑलरेडी हम लोग दो क्लास बना चुके हैं, एक है मॉडल क्लास कैटेगरी आईडी सॉरी प्रोडक्ट, और दूसरा है कैटेगरी। So now a database context is needed to so that the model could interact with the database. हम लोगों को persistent classes के थ्रू नहीं करना है, अभी actual database को सर्च करना है। So you can add one new folder, फोल्डर का नाम रहेगा DB context। सिमिलर तरीके से जैसे मॉडल ऐड किया वैसे DB context नाम का एक फोल्डर ऐड करना है। ओके, और उस फोल्डर के अंदर आप लोगों को नया क्लास क्रिएट करना है, सिमिलर तरीके से जैसे पुराने किए थे। ये DB context क्लास में प्रोडक्ट कंटेक्ट, which include the DB set properties for product and categories। उसमें कुछ मेथड है ऑन मॉडल क्रिएटिंग, उसका यूज करके मास्टर डेटा कुड बी सीडेड टू द डेटाबेस। ये क्लास जो आप लोगों का है वो डेटाबेस से इंटरेक्शन करके ऑटोमेटिकली आप लोगों का डेटाबेस भी बना देगा। डेटाबेस में अगर आप लोगों की कुछ टेबल स्ट्रक्चर है वो भी बना देगा आफ्टर माइग्रेशन। तो जस्ट लुक आउट द कोड यहाँ पे दिया है, प्रोडक्ट कंटेक्ट का कोड भी दिया है। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू बिकॉज ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे पहले हम लोगों ने बुक में पढ़ा था। जस्ट दिस टाइम वी आर गोइंग टू डू इट थ्रू विजुअल स्टूडियो। ओके, तो ये डीबी कंटेक्स्ट आप लोगों का प्रोडक्ट कंटेक्स्ट वाला क्लास है। ठीक है, उसमें देखो आप लोगों को पर्टिकुलर चीजें मिल जाएंगी, प्रोडक्ट कंटेक्ट, डीबी कंटेक्ट, कैटेगरी आईडी गेट सेट करना है, ऑन मॉडल क्रिएटिंग में न्यू कैटेगरी। यू कैन सी हियर, यहाँ पे ऑलरेडी वो प्री डिफाइंड एक मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। कौन सा मॉडल का नाम है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में ऑलरेडी कैटेगरी क्लास में ऑलरेडी वैल्यूज फिलअप कर रहे हैं। व्हाट इज दैट, ID1 नेम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, दूसरा है क्लोथ, तीसरा है ग्रोसरी। तो जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अपने आप डेटाबेस क्रिएट होना चाहिए जिसका नाम समथिंग रहेगा प्रोडक्ट DB, और उसके अंदर एक पर्टिकुलर टेबल बनना चाहिए कैटेगरी का। ओके, दैट इज व्हाट इज देयर। तो एंड आप लोगों को एक आपका पर्टिकुलर फाइल फोल्डर में ऐड कनेक्शन स्ट्रिंग ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल है। इसमें यहाँ पे आप देखो, स्क्रीन आई विल एनलार्ज थोड़ा सा। इसमें प्रोडक्ट DB एक पर्टिकुलर पार्ट आप लोगों को लिखना है, कनेक्शन स्ट्रिंग अलाउ होस्ट स्टार करके, जो नहीं रहेगा पहले कोड में। कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोडक्ट DB और डेटा सोर्स ID समथिंग, जो भी आप लोगों का कनेक्शन स्ट्रिंग रहेगा, SQL कनेक्शन स्ट्रिंग आप लोगों को नेट पे से जो यूज करते हैं वो भी है, आपका यूजर नेम पासवर्ड रहेगा वो भी चलेगा। लेकिन डॉकर के लिए आप लोगों को जैसे मैंने बोला सेपरेट कनेक्शन स्ट्रिंग लगता है, तो दैट यू कैन। ओके, तो एसक्यूएल सर्वर का कनेक्शन स्ट्रिंग ऑलरेडी प्री बिल्ड आप लोगों को नेट पे भी मिल जाएगा, और आप लोगों का मशीन का नाम के हिसाब से आप लोगों को थोड़ा बहुत चेंजेस वहाँ पे करना पड़ेगा। तो आई जस्ट शो यू, अभी आप लोगों का ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल है जो विजुअल स्टूडियो में हमने नया प्रोजेक्ट किया है। इसमें यहाँ पे अलाउ होस्ट है, इसके नीचे आप लोगों को सिर्फ वो उतना पार्ट ऐड करना पड़ेगा जो भी यहाँ पे दिया है। ओके, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग नाम का आप लोगों को एक लिखना पड़ेगा, लाइक दैट। ओके, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल्स बिकॉज आप लोगों को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कोड बना बनाया हुआ मिलेगा, डाउनलोडेबल है ओल्डर वर्जन में, इसलिए कुछ डिपेंडेंसीज प्रॉब्लम आ सकते हैं। कोड रेडी है विजुअल स्टूडियो के साथ, आप उसको ओपन कर सकते हो, लेकिन
जैसे मैंने बोला नगेट पैकेज डिपेंडेंसी, डॉटनेट का न्यू इसमें एप्लीकेशन करने का तरीका, और कनेक्शन स्ट्रिंग आप लोगों का एसक्यूएल सर्वर का आपके मशीन के हिसाब से आपको चेंज करना है। अदरवाइज प्री बिल्ड कोड जो भी दिया है वो आप लोगों को यूज में नहीं आएगा। Okay, then we have to open the startup.cs file and we need to add SQL Server DB provider EF code. So here just add MVC के नीचे एक लाइन ऐड करना है, services dot add DB context product context, और प्रोडक्ट कंटेक्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं o डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर। अगर आप लोगों ने देखा रहेगा तो पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने एनजीपी एसक्यूएल लिखा था, वो पोस्टग्रे एसक्यूएल के लिए था। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पोस्टग्रे एसक्यूएल का कनेक्शन तो कंप्लीट हो चुका था, बट लैटर ऑन वी आर नॉट एबल टू गो थ्रू द आउटपुट। फिर यहाँ से आप लोग यूज एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग करोगे। कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है प्रोडक्ट डीबी। इट विल गो टू जेसन फाइल, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट डीबी नाम से कनेक्शन स्ट्रिंग बना है, एंड देन it will use this connection string to connect your SQL server. Okay. After that, you need to create a folder called as repository. Okay. Add new folder name repository in the project, and we need to add again C# class भी बोला तो चलेगा। I product repository interface उसमें create करना है। You can see here code प्रोडक्ट माइक्रो सर्विस रिपोजिटरी, यहाँ पे क्लास की जगह पे क्या आएगा, इंटरफेस आएगा, इंटरफेस आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी, और इसमें आप लोगों को इस तरीके का कोड लिखना है, आई इन्यूमरेबल प्रोडक्ट गेट प्रोडक्ट, देन गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, इंसर्ट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट एंड अपडेट प्रोडक्ट। ये सारा डॉटनेट कोर का है ऑलरेडी। अगर आप लोग वहाँ पे देखोगे, बिकॉज जब डीबी कंटेक्स्ट क्लास ये वाला एग्जीक्यूट होगा और आप लोग ऐड करोगे ये कोर, तो बैकग्राउंड में डेटाबेस कनेक्ट करने का, ये मेथड के थ्रू क्वेरीज फायर करने का काम सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वंस द रिपोजिटरी, यू नीड टू क्रिएट रिपोजिटरी फोल्डर, उसमें आप लोगों को एक पर्टिकुलर यहाँ पे आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी इंटरफेस ऐड करना है। वो ऐड करने के बाद आप लोगों को नया और एक क्लास बनाना है, आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी। ओके, कॉन्क्रीट क्लास आप लोगों को बनाना है प्रोडक्ट रिपोजिटरी। ओके, और रिपोजिटरी फोल्डर दैट इम्प्लीमेंट्स आई रिपोजिटरी, उसी में आप लोगों को प्रोडक्ट रिपोजिटरी में क्लास बनाने का, एक इंटरफेस बनाने का है आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी, और दूसरा बनाने का है प्रोडक्ट रिपोजिटरी नाम का क्लास जो आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट करता है। कोड भी यहाँ पे नीचे दिया है। इसमें आप नॉर्मल मेथड लिखोगे, डिलीट मेथड, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, लाइक दैट। ये यहाँ पे कोड है। कौन सा फोल्डर बनाने का, कहाँ पे बनाने का है, वो भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो स्ट्रक्चर है एसपी डॉट नेट कोर का, तो उसी हिसाब से आप लोगों को रखना है। प्रोडक्ट रिपोजिटरी कैसे करना है, डिलीट प्रोडक्ट में क्या लिखना है, व्हाट वी आर डूइंग, डीबी कंटेक्ट जो हमारा प्रोडक्ट कंटेक्ट का पार्ट था उसको लेकर हम कॉल कर रहे हैं, डीबी कंटेक्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट रिमूव प्रोडक्ट, उसको पास करेंगे। तो रिमूव मतलब आप लोगों का डिलीट ऑपरेशन डेटाबेस पे परफॉर्म होगा। गेट प्रोडक्ट बाय आईडी किया तो वो एग्जीक्यूट होगा, फिर डीबी कंटेक्ट प्रोडक्ट फाइंड किया तो वो एक होगा, गेट प्रोडक्ट, इंसर्ट प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, ये सारी मेथड के थ्रू ये डेटाबेस से कॉल करेगा। यू कैन सी हियर व्हाट सपोज टू बी द वैल्यू, एंटिटी स्टेट मॉडिफाइड, अगर वहां पे आए। फिर से आप लोगों को स्टार्टअप क्लास में वापस जाना है। ठीक है, एंड इसमें आप लोगों को सर्विसेज डॉट एड ट्रांजिएंट आई प्रोजेक्ट रिपोजिटरी एक पर्टिकुलर लाइन ऐड करना है, जो यहाँ पे हाईलाइट किया है, जो हम लोगों ने यूज एसक्यूएल सर्वर लाइन लिखा था स्टार्टअप में प्रीवियसली, उसके बाद एक लाइन यहाँ पे ऐड करना है। दिस लाइन विल अलाउ, अगर समझो पहली बार कनेक्शन नहीं हुआ डेटाबेस से, तो वो अटेम्प्ट करता है 4 टाइम डिपेंडिंग ऑन द सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन, सो दैट पहली बार में अगर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आया, कनेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ डेटाबेस से, तो नेक्स्ट टाइम पे ट्राई करने में वो हो जाता है। ठीक है, स्टार्टअप डॉट सी एस में ये लाइन भी ऐड कर। नाउ आफ्टर दैट वी नीड टू ऐड अ कंट्रोलर फाइल। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे एप्लीकेशन में बाय डिफॉल्ट वेदर फोरकास्ट का कंट्रोलर ऐड किया है, उसको डिलीट करना है। उसकी जगह पे हम लोग कंट्रोलर फोल्डर में वापस ऐड, उसको राइट क्लिक करेंगे, यू कैन सी हियर, राइट क्लिक करने के बाद ऐड पे क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन आता है कंट्रोलर का। ठीक है, और कंट्रोलर में आप लोगों को ये वाला कोड वहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका, सिलेक्ट एपीआई कंट्रोलर विथ रीड राइट एक्शन। ठीक है, इस कंट्रोलर का नाम आप लोगों को प्रॉपरली लिखना है, एपीआई कंट्रोलर विथ रीड राइट एक्शन लिखना है। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कंट्रोलर, फॉर अ टाइम बिंग, एक्चुअली टाइम है नहीं अपने पास ज़्यादा, फिर भी
कंट्रोलर फाइल को मैं राइट क्लिक करता हूँ। ओके, इसको पहले डिलीट करो, वेदर फोरकास्ट को। ओके, परमानेंटली डिलीट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट क्लिक करो, इसको ऐड, ऐड में कंट्रोलर आता है, और कंट्रोलर में आप लोगों को रीड राइट एक्शन सिलेक्ट करना है, और इसको ऐड करेंगे तो वो आप लोगों को नाम पूछता है, तो आप लोगों को इसका नाम होम कंट्रोलर देना है। ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी क्लास सी शार्प क्लास, तो पहले सी शार्प क्लास सिलेक्ट करना है, एंड देन हियर यू कैन राइट प्रोडक्ट कंट्रोलर। इसमें एक मल्टीपल स्टेप था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। सी शार्प क्लास सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट कंट्रोलर। प्रोडक्ट कंट्रोलर एम्प्टी यहाँ पे रीड राइट ऑप्शन के साथ वो आ जाता है। I'll again do the one thing, add controller read write actions, add करो, and then just C sharp class select करो, and then click OK. Actually something I'm missing, 1 minute, again add करो। ठीक है, वो रीड राइट एक्शंस के साथ आना चाहिए, समथिंग इज मिसिंग देयर। बट यहाँ पे आप लोगों को प्रोडक्ट कंट्रोलर क्लास में आप लोगों को डिफॉल्ट रीड राइट ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे, उसमें आप लोगों को कुछ कोड लिखना है। तो वहाँ पे अगर कुछ ऑलरेडी कुछ लिखा रहेगा तो वो डिलीट करना है। आप लोगों ने जो नया क्लास किया, एक ही क्लास चाहिए, जैसे मैंने अभी एक्स्ट्रा करके देखा है वैसे करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी अगर कुछ रहेगा तो उसको डिलीट करो, सिर्फ प्रोडक्ट कंट्रोलर को रहने दो। देन प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर आप लोगों को ये वाला कोड लिखना है, जिसमें कंट्रोलर बेस रहेगा, रिपोजिटरी रहेगा, एक्शन गेट रिजल्ट रहेगा, सब कुछ। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट बिकॉज प्रीवियसली ये हम लोगों ने, जब मैंने थियरी आप लोगों को ऑथर का दिखाया था जो आपके सिलेबस का बुक है, दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर, सब कुछ सेम। प्रोडक्ट कंट्रोलर क्लास के थ्रू होकर ही वो इंटरेक्ट करेगा डेटाबेस से एंड यूजर। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट, एंटिटी फ्रेमवर्क और माइग्रेशन। ओके, so for that I will just open the full fledged project जो ऑलरेडी किया था। so I'll just open the Visual Studio once again. You can see प्रोडक्ट माइक्रो सर्विस एक ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, सारे क्लासेस है, मॉडिफिकेशन कर चुका हूँ। कोड आपको प्री बिल्ड वेबसाइट से मिलेगा। यू कैन सी द फर्स्ट पार्ट जो है वो हम लोगों को चेंज करना पड़ता है ऐप डॉट जेसन में। ओके, और यहाँ पे कुछ चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसे मॉडल में दो क्लासेस बनाए हैं, रिपोजिटरी में दो क्लास, एक इंटरफेस एक क्लास बनाया है, देन डीबी कंटेक्स में एक क्लास बनाया प्रोडक्ट कंटेक्स का, और ये कंट्रोलर में प्रोडक्ट कंट्रोलर एक बनाया है। डिपेंडेंसीज में आप देखोगे पैकेजेस में, तो यू कैन सी हियर ASP.NET कोर है। ओके, देन अज्योर कंटेनर है, जो सॉरी एसक्यूएल सर्वर वाला पार्ट है, वो सारी चीजें यहाँ पे है। ओके, तो जो जरूरत की पार्ट है वो वहाँ पे आएगा। नाउ what we have to do here, the next part, we need to add migrations। ओके, बिकॉज हम लोगों का प्रोजेक्ट जब बनता है और बिल्ड और कंपाइल होगा, तब हम लोगों को पैकेज मैनेजर कंसोल से कुछ कमांड फायर करनी होती है। तो पैकेज मैनेजर कंसोल क्या होता है वो दिखाने के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा, तो टूल्स में जाना है हमको, नगेट पैकेज मैनेजर में जाना है, और हम लोगों ने लास्ट टाइम सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया था, हम लोगों को अभी फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना। आई एम गोइंग टू विजुअल स्टूडियो नाउ। यहाँ पे टूल्स में जाना है, टूल्स में नगेट पैकेज मैनेजर में पैकेज मैनेजर कंसोल, लास्ट टाइम हमने ऐड करने के लिए सेकंड ऑप्शन यूज किया था वेब का, अभी कंसोल का यूज करना है, पैकेज मैनेजर कंसोल। ओके, पैकेज मैनेजर कंसोल आपकी स्क्रीन पे थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा, बट इस तरीके का एक कंसोल आता है जिसमें पीएम के आगे एक पर्टिकुलर चीज लिखी है, कर्सर ब्लिंक दिख रहा होगा आप लोगों को, स्क्रीन पे मूवमेंट देखिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है add migration, add dash migration, remember that, add dash migration space initial create। ओके, ऐड माइग्रेशन इनिशियल क्रिएट। अगर आपका एसक्यूएल सर्वर का पाथ और सारा प्रोजेक्ट बिना डिपेंडेंसी का कोई इशू नहीं रहेगा, तो यू कैन सी ये ऐड माइग्रेशन के बाद आप लोगों का प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा, प्रोडक्ट डीबी बन जाएगा। यू कैन सी ये एसक्यूएल सर्वर है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ।
यहाँ पे एक ही डेटाबेस है, कस्टमर डेटाबेस। ठीक, ये क्वेरी फायर करने के बाद वहाँ पे डेटाबेस क्रिएट होना चाहिए। आई एम जस्ट फायरिंग दैट क्रिएट। लेकिन अगर मैंने ये एक बार माइग्रेशन ऐड कर दिया, ओके, तो वो पर्टिकुलर माइग्रेशन वहाँ पे उसी नाम से नहीं होता है, दूसरे नाम से होता है। यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, वहाँ पे एरर आया है, द नेम इनिशियल क्रिएट इज यूज बाय एग्जिस्टिंग माइग्रेशन। तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे यूज कर चुका हूँ, तो जस्ट आई नीड टू चेंज द नेम। ठीक, यहाँ पे वापस ऐड डैश माइग्रेशन इनिशियल क्रिएट 5 आई एम राइटिंग, बिकॉज मैंने 3-4 बार उसको ट्राई किया था, तो देर इज नो इशू, वो नेम है सिर्फ माइग्रेशन। add dash migration initial create 5, that is the name, add migration important है। I need to enter। इसके बाद अगर जब मैं एंटर करता हूँ, जो डीबी कंटेक्ट क्लास है वो फिर आप लोगों का मॉडल से वैल्यू लेगा कि मॉडल क्लास का स्ट्रक्चर कैसा है, और उसका एक माइग्रेशन फाइल बनाएगा। तो यहाँ पे जब ये कमांड सक्सेसफुली हो जाता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माइग्रेशन फोल्डर दिख रहा है आप लोगों को राइट हैंड साइड में। उसमें माइग्रेशन का फाइल देखो, इनिशियल क्रिएट 5 का काम हुआ है, 4 पहले से हुआ था, 5 मतलब हम लोग फिर से एक बार माइग्रेट कर रहे हैं डेटाबेस। ठीक, यू कैन सी हियर माइग्रेशन हो गया। ओके, देन इसके बाद सेकंड कमांड हम लोगों को फायर करनी है, अपडेट डेटाबेस। अपडेट डैश डेटाबेस, आई थिंक सबसे लास्ट लाइन पे है, आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आई डू नॉट नो। फिर मैं उसको एक बार हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, कैन सी हियर, थोड़ा सा मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया उसका। अपडेट डेटाबेस ये कहाँ से आया है, कंसोल टूल्स में से, नगेट मैनेजर में से, नगेट पैकेज मैनेजर, पैकेज कंसोल में से ये आया है। ओके, जैसे मैं अपडेट डेटाबेस करता हूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग अगर आप लोगों का प्रॉपर रहेगा तो वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, आई एम जस्ट डूइंग इट, अपडेट डेटाबेस। इट विल शो सम मैसेजेस एंड देन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज। थोड़ा टाइम लेगा बट वो डेटाबेस में कोर स्ट्रक्चर आप लोगों का बना देगा। यू कैन सी हियर इट इज स्टार्टेड, इज एग्जीक्यूटिंग। देखो वैल्यूज भी इंसर्ट हुआ है जो वहां पे लिखा था कैटेगरी में, ग्रोसरी आइटम 1 2 3। टेबल्स भी क्रिएट हुआ है, डेटाबेस भी क्रिएट। नाउ इफ यू वांट टू क्रॉस चेक कि अगर आप लोगों का डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, तो व्हाट वी आर गोइंग इनटू एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के बाद नहीं आता है तो व्हाट व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट क्लोज इट एंड वंस अगेन आई विल जस्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, आई विल ओपन इट, बिकॉज वो इमीडिएटली वहाँ पे रिफ्लेक्ट तो होता है बट वो दिखाता नहीं। सो आई विल जस्ट लॉग इन हियर इन डेटाबेसेस। यू कैन सी हियर पहले प्रोडक्ट डीबी नहीं था, अभी अपने आप प्रोडक्ट डीबी क्रिएट हुआ है। तो प्रोडक्ट डीबी के अंदर अगर आप टेबल देखोगे तो यू कैन सी वहाँ पे 3 टेबल हुए, एक माइग्रेशन हिस्ट्री के लिए, एक डेटाबेस कैटेगरीज का हम लोगों ने जिसमें ऑलरेडी वैल्यू डाला है, और तीसरा टेबल है प्रोडक्ट जिसमें कुछ वैल्यू नहीं। डीबीओ कैटेगरी को आप लोग राइट क्लिक करोगे, सिलेक्ट ऑप्शन जो भी आता है सिलेक्ट क्वेरी फायर करोगे, तो यू कैन सी जहाँ पे हम लोगों ने कैटेगरी वाला क्लास बनाया था उसमें बाद में कंटेक्ट के थ्रू डायरेक्टली वैल्यूज डाले थे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ, ग्रोसरी, ये कैटेगरीज ऑलरेडी बन चुकी। प्रोडक्ट को अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो उसमें कुछ वैल्यू नहीं है, एम्प्टी है। तो वो वैल्यू हम लोग बाहर से पुट करेंगे विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। तो बी विथ मी, कॉन्सेंट्रेट। यू कैन सी हियर नाउ एवरीथिंग इज फाइन। ओके, आई विल जस्ट मिनिमाइज दिस वन एंड आई विल गो टू। एक बार हम लोगों का डेटाबेस अपडेट हुआ, नाउ वी हैव टू चेक, आई थिंक दिस वी हैव चेक एवरीथिंग। अभी हम लोगों को रन करना है प्रोडक्ट माइक्रो सर्विस वाया IIS। ओके, तो वी विल डू दैट वन। IIS एक्सप्रेस हमारा प्रोजेक्ट माइक्रो सर्विस कहाँ पे है, ये है। आई विल, यहाँ पे डॉकर पे है, मैं उसको चेंज करके IIS पे कर रहा हूँ। होपफुली आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है? और IIS एक्सप्रेस पे क्लिक करने के बाद इट विल जस्ट ओपन वन वेब पेज। ओके, सो नो प्रॉब्लम। एरर ऑकर बोलता है तो क्या करना है, बिल्ड। बिल्ड करो सॉल्यूशन को, एक बार क्लीन करो। ठीक है, क्लीन करो,
बिल्ड एंड क्लीन होने के बाद अगेन ट्राई टू, okay? I'm just waiting IIS server to respond. You can see here, okay? यहाँ पे पेज आप लोगों का रन नहीं हो रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पे रन नहीं हो रहा है बिकॉज IIS एक्सप्रेस आप लोगों का प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देगा एपीआई वैल्यूज में, वो सिर्फ वेब पेज वेबसाइट रहेगा तो उस पर ओपन होता है। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके? यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी कुछ आउटपुट नहीं आया है, बट देन वी विल गो यूज पोस्टमैन। ओके, पोस्टमैन सर्विस यूज करेंगे, तो स्टार्ट द पोस्टमैन नाउ। पोस्टमैन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और जब तक पोस्टमैन स्टार्ट होता है तब मैं आपको आगे का पार्ट बता देता हूँ। हम लोगों को पोस्ट मेथड पहले टेस्ट करना है बिकॉज हमारे प्रोडक्ट में वहाँ पे वैल्यू नहीं है। हम लोगों को यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पाथ भी दिया है, http://localhost 44312, क्योंकि वो तभी आपने देखा था। वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पाथ हम लोग पोस्टमैन में कॉपी करेंगे। और उसके साथ में पोस्ट मेथड में आपको पता है बॉडी में आप लोगों को रॉ में जेसन सिलेक्ट करके कुछ वैल्यूज भेजनी है। जबकि हमारा प्रोडक्ट वाला जो पार्ट है उसमें ऑटो जनरेटर होता है आईडी 123। तो ऑटो जनरेट या ऑटो इंक्रीमेंट जो आईडीज रहते हैं या प्राइमरी कीज रहते हैं उसमें वो आईडी देने की जरूरत नहीं है। तो जेसन वर्कलोड में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो, सिर्फ इतना ही, नेम, आईफोन, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी आईडी। जबकि आईडी भी टेबल में है लेकिन वो देने की जरूरत नहीं बिकॉज वो ऑटो इंक्रीमेंट। ओके, सो आई विल जस्ट पोस्ट दैट वन, कॉपी कर लेता हूँ and I will open the postman. I have kept this particular query ready for you. Okay, I'll check इसमें कुछ है क्या? Yes, you can see here मेरे प्रोडक्ट में कुछ मैंने लिखा नहीं है, बट यहाँ पे मैं गेट मेथड की जगह पे क्या कर रहा हूँ, पोस्ट मेथड यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे वैल्यूज ये जो है वो मुझे क्या देना पड़ेगा, जो मेरा अभी रनिंग वाला 44, आई जस्ट पेस्ट इट। व्हाट इज दैट? http://44312, बिकॉज जहाँ पे रन हो रहा है वही लिखना है। मैंने लिखा है मेरा नेम सैमसंग, माई प्रोडक्ट टू 3000, कैटेगरी आईडी 1। जस्ट सेंड करो इसको। यू हैव नॉट गेट एनी, ओके सॉरी, आप लोगों को यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। आई जस्ट चेक, यू कैन सी हियर वो HTTPS था, यहाँ पे HTTP कर दिया है। ओके, HTTPS पे नहीं रन हुआ है बिकॉज सिक्योरिटी नहीं हुआ पे। और यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो कि मुझे रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो मैंने भेजा वही वापस आया। दैट मीन्स वो वैल्यू प्रॉपरली मेरा सर्विस को मिला है। ओके, यू कैन सी हियर रिस्पॉन्स आया है, यहाँ पे कुछ हेडर्स में वैल्यू आया है। ओके, नाउ if I am going to use this one, I'm again pressing the enter. Okay, I'll just copy this one. तो यहाँ पे जनरली ब्राउजर पे से जो होता है वो गेट मेथड होता है। यू कैन सी नाउ द आईडी नेम, आईडी ऑटोमेटिकली आया है, नेम सैमसंग, माय प्रोडक्ट, प्राइस समथिंग, ये दोनों चीज यहाँ पे आ चुकी है। ओके, अगर आप लोगों को वापस से चेंज करना है तो आप लोग जस्ट फोन का जो भी रहेगा, कुछ एक प्रोडक्ट का नेम करो, माय प्रोडक्ट का नंबर डालो कुछ, उसका प्राइस थोड़ा चेंज करते हैं, 20 कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं डालेंगे, वापस से सेंड करो। इफ यू सेंड 2 टाइम्स तो 2 बार आप लोगों को वो ऑप्शंस रिस्पॉन्स में आएंगे। एक पहला आईडी था, आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, नीचे भी आया। ठीक है, डन, दिस इज द थिंग। फिर इसके बाद मैं वापस यहाँ पे एंटर करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो दोनों वैल्यू आ जाएगा। ये देखो, पहला प्रोडक्ट का है, दूसरा प्रोडक्ट। ना व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट फॉर अस, फॉर इन IIS, हम लोगों को चेक करना है कि ये पर्टिकुलर वैल्यूज डेटाबेस में गए या नहीं। तो मैं यहाँ पे SQL सर्वर में जा रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को नहीं दिखा रिजल्ट तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, यू कैन सी हियर रिजल्ट में दिख रहा है सैमसंग मोटो जी, माई प्रोडक्ट 2, माई प्रोडक्ट 3, 3020, कैटेगरी आईडी 1। ओके, तो
this is the part where we have to stop now actually, because there is another lecture. ओके, तो इसमें काफी चीजें आगे है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। आई थॉट कि एक लेक्चर में हो जाएगा, बट इट इज नॉट डन। तो इन नेक्स्ट लेक्चर या फिर किसी एक्स्ट्रा लेक्चर को मुझे परमिशन मिलती है, तो देन अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू सी। ये जो हमने क्रिएट किया उसका एक ओवरव्यू विद इन 5 मिनट्स। ओके, देन फिर हम लोग इसको पोस्ट मेथड में यूज करेंगे, फिर से गेट मेथड में यूज करेंगे, फिर से डिलीट मेथड यूज करेंगे, फिर उसके बाद पुट मेथड यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग देन डॉकर कंटेनर के थ्रू रन करेंगे। डायरेक्टली डॉकर कंटेनर में रन नहीं होता है, फिर वो उसको किस तरीके से डॉकर कंटेनर, अभी हम लोग जो रन कर रहे हो आईएएस सर्वर के थ्रू कर रहे हैं, नॉर्मल वेबसाइट के जैसा। लेकिन हम लोगों को डॉकर इमेज बनाना है, अगर माइक्रो सर्विस बनाना है तो फिर डॉकर इमेज के थ्रू कैसे रन करते हैं, एंड देन डॉकर इमेज के डॉकर के थ्रू रन करने के बाद उसके लिए क्या सेटिंग क्या सेटअप करना पड़ता है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बिकॉज आई कुड नॉट वेट टिल संडे टू एग्जीक्यूट दिस एग्जाम, पर काफी ज्यादा चीज अभी पेंडिंग है पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए, विच इज क्वाइट पॉसिबल इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल फिनिश दैट। तो फॉर टुडे आई एम टेकिंग योर हेल्प। हम लोगों ने आईआईएस सर्वर पे एटलीस्ट पोस्ट मेथड से उसका वैल्यू लिया और गेट मेथड से भी देखा है। यू कैन सी हियर, अगर मैं इसको गेट करता हूँ और वापस सेंड करता हूँ तो भी मुझे दो प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ। एक्चुअली ये नीचे अगर आप देखोगे तो दो प्रोडक्ट हमने जो डाले हैं वो भी। तो वी हैव चेक द रिजल्ट विथ आईआईएस सर्वर ब्राउजर पे भी हम लोगों ने गेट मेथड का देखा और पोस्टमैन के थ्रू से देखा। अभी हम लोगों को बहुत सारे मेथड आईआईएस के थ्रू करना है, फिर सेम प्रोजेक्ट हम लोगों को डॉकर में कन्वर्ट करना है, फिर डॉकर का इमेज रन करके वो किस तरीके से करते हैं उसका भी स्टेप्स है। देन उसको हम लोगों को डॉकर में रन करके फिर से यही मेथड करें। रिमेंबर सेम बात सेम चीज नहीं रहती है, एसक्यूएल सर्वर का जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसमें पोर्ट नंबर और सारी चीजें ऐड करनी पड़ती है। तो देर इज लॉट्स ऑफ स्टफ दैट वी आर गोइंग टू कवर इन नेक्स्ट लेक्चर। एटलीस्ट हम लोगों ने एक आउटपुट देख लिया, दैट इज अ गुड थिंग। So thank you very much, student, for patiently listening to today's lecture. Okay. Within a short while, I'll just provide you with the attendance link. You should give the attendance as early as possible so that you will go on time to the next lecture. Anything else you want to ask student right now? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 5 मिनट में उसको कवर करेंगे, विल नॉट टेक मच मोर टाइम। यस स्टूडेंट, एनीवन डू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, कैसे स्टेप करना है? आई एम गोइंग टू अपलोड द वीडियो ऑल्सो, so I have given the attendance. Okay, thank you so much, students.